Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So morning time is a rush hour for all of us. We juggle many things like making everyone breakfast, packing their lunch, cleaning house is a one thing also. So I will be sharing how I multitask and take care of things in a short period of time. So let's get started. So the first thing first, once everyone are done taking shower, then I turn on the laundry so that way the machine do all the work while I take care of the other things. And today I'm washing all the blankets since the weather is getting better. I'm just gonna go ahead and wash it, store it for the next year. So as you can see, I do have many different settings in this washer, but I always use the sanitizer setting for that. So now this machine is taken care of. We'll go downstairs and put this other machine to work, and that is this Expert Robot vacuum cleaner. It came in a PR package. I've been using this from last few weeks and it's very easy to assemble, and the best part is that this vacuum has a 6 different mode. So it can include auto cleaning, maximum vacuuming cleaning, edge cleaning, random cleaning, area cleaning, as well as the deep cleaning. So let's say you just want to clean either one room or the small area, then you can set the mode to the area cleaning mode. So that way only that area will get clean. And believe me guys, this thing has saved my so much time because while it's cleaning the floor, I can focus more on the other thing. And the true test was this rug. Now as you can see, this rug is thick. And to be honest with you, I was not expecting this vacuum to go on top of that, but it did, and it cleaned very well also. So it comes with the remote, so that way you can switch between the different modes and the power level anytime you want it. Also, it has a rechargeable battery and it can clean non-stop for 2 hours. So of course, in 2 hours, my entire house was clean. So as you can see here, I'm busy in the kitchen, but at the same time, my house is getting clean also. So let's say if the vacuum needs to be charged, then it will start beeping and it will let me know that it needs to be charged. If the charging station is on the same floor, then the vacuum by itself will go to the charging station and start charging. But if the vacuum is upstairs, the charging station is downstairs, then obviously it will start beeping and then I will know that I need to charge this vacuum. This first floor is nice and clean. Now we'll go upstairs. So here we are in one of my son's bedroom. Now this carpet is few months old as well as very thick carpet. But still, as you can see, even this carpet get cleaned properly. And the best part about this vacuum is that it goes underneath the bed and it clean over there too. Because regular vacuum cannot fit underneath and we often neglect that side. But with this vacuum, of course, every corner get cleaned properly. Also has a double layer filter which is washable. So guys, Mother's Day is just around the corner. So if you want to give your mom, aunt, or even someone who's going to college this year, I would say this is the perfect gift for them because it doesn't take much space. It clean for them. So I'm sure anyone would appreciate this. I also have a coupon code for you guys so you can save 15%. So all the link as well as the info will be down below in the description box. So here as you can see, I'm in my bathroom taking care of the sink area while the vacuum is cleaning the floor. So as you saw, I did use it on the different surfaces and it works fine. So now this bathroom is clean, and the other good thing about this vacuum is that you can program it. So let's say on certain days, certain time you want your house to be clean, then you can set it that way and it does it for you.
I do this much cleaning every single day, especially because of the COVID. I take some extra precaution. And when you have a kids around, you have to be very careful. So while I was doing this, laundry was done. So to store this heavy blankets, comforter, my jacket, kids' jacket, I'm using these storage bags. They are three in one set. It is very well made, heavy duty material. It has a clear window so you can clearly see, and also has a handle on the side. There is a zipper so things stay secure in there, and it is a huge bag. I would say it can easily hold king size comforter. So I do have the 15% coupon code for you guys, so don't forget to check the description box for both of this product. So at least for a year, I'm gonna pack all this stuff and just forget about it. तो ये स्टोरेज बैग जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कि जैसे ही सीजन चेंज हो उसके बाद जो भी कपड़े आप उसमें अंदर रख दो तो उस हिसाब से आपका क्लोजेट भी क्राउडेड नहीं लगेगा। अदरवाइज हमारे क्लोजेट में हमारे समर क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, हमारे इंडियन क्लोथ्स, काफी सारी चीजें वहां पे रहती है, तो उस हिसाब से हमेशा वो क्लोजेट भरा ही लगता है। और अगर आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड जैसे है कि जैसे ही मेरे क्लोजेट में आते हैं ना, हमेशा उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि तुझे इतने कपड़े की क्या जरूरत है। तो सेम प्रॉब्लम आपको भी है, तो स्मार्टली प्ले करो और ऐसे स्टोरेज बैग में कपड़े रख दो तो आपका क्लोजेट भी खाली लगेगा। और मेरे केस में तो ये मेरा जो गेस्ट बेडरूम का क्लोजेट है वो भी मैंने कैप्चर किया हुआ है, तो मेरे लिए तो ये स्टोरेज बॉक्स काफी यूजफुल है। और ये है मेरी पेंट्री, जैसे आप देख रहे हो काफी सारा मैस है इसमें। ये एक एक्चुअली मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है किचन का, जो बहुत जल्दी मैस हो जाता है। सब चीजें यहाँ से वहां हो जाती है, उसके बाद कोई चीज अपनी जगह पे मिलती नहीं है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले आके ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पेंट्री एक बार ऑर्गेनाइज होना तो किचन का काम बहुत इजी हो जाता है। स्पेशली आप जब अब्रॉड में हो ना, जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है आपको, वहां पे ऐसे मल्टीटास्किंग करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं होता जहाँ पे आपको लगे कि चलो आज सब कुछ घर में ऑर्गेनाइज है, कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि सब कुछ अपने आप ही करना है। कोई एक्स्ट्रा हेल्प तो है नहीं जिसको आप असाइन काम कर लो कि ये काम आप कर लो, तो खुद को ही सब काम असाइन करने होते हैं, तो पूरा दिन बहुत ही एक्टिव जाता है यहाँ पे। आज सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था खीचू। ये गुजराती ब्रेकफास्ट है और राइस फ्लावर में से बनता है। किसी ने मुझे उसकी रेसिपी पूछी थी तो आज सुबह ही बनाया था, तो आई थॉट शेयरिंग विथ यू गाइस। तो आप ये जब बनाओ ना, तो बस एक मेजरमेंट का आपको ख्याल रखना है कि 1 कप आप राइस फ्लावर ले रहे हो तो 2 कप आपको पानी लेना है। पानी जैसे ही थोड़ा उबले उसमें आप सॉल्ट ऐड कर दो, ग्रीन चिलीज ऐड कर दो और 1 टेबलस्पून जितना सा ऑयल। उसके बाद जब आप राइस फ्लावर उसमें ऐड करो ना, तो आपको सब राइस फ्लावर एक ही जगह पे नहीं डालना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैं सब जगह स्प्रिंकल कर रही हूँ, बस वैसे ही उसको आपको ऐड करना है। उसके बाद टेम्परेचर आप उसका लो कर दो और उसको 10 से 15 मिनट तक होने दो। सो जैसे आपने देखा, ना ही मैंने उसमें कोई सोडा ऐड किया है, पर फिर भी ये बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बन जाता है क्योंकि हमने उसमें ऑयल ऐड किया है। काफी सारे लोग इसमें जीरा भी ऐड करते हैं, पर मैं ऐसे सिंपल बनाती हूँ, पर फिर भी बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आपको लगे कि बस अब थोड़ा सा पानी रह गया है, तो उसके बाद आपको प्रॉपर्ली उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप वुडन स्पैचुला और जैसे यहाँ पे मैं रोलिंग पिन यूज कर रही हूँ वो ही यूज कर सकते हो आप। प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए उसके बाद बस आप 5 मिनट तक उसको रहने दो, और फिर भी आपको लगे कि ये फ्लावर प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दो और लो टेम्परेचर पे वापस 5 मिनट तक रख सकते हो। सो ये एक इजी मेथड है। अगर आप प्रॉपर्ली उसका जो मेजरमेंट है वो फॉलो करते हो तो बहुत ही इजीली ये बन जाएगा। काफी सारे लोग इसको स्टीम भी करते हैं,
पर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कोई स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये राइस फ्लावर में से एक्चुअली जो राइस पापड़ जो बनता है ना वो इसी में से बनता है। वो पापड़ बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी मेथड जो है वो अलग है, पर ऐसे ही आपको एंजॉय करना है तो उसको ऑयल के साथ और थोड़ा सा जो अचार पाउडर आता है ना उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हो। सो एज आई प्रॉमिस इन माय लास्ट वीडियो, ये है मेरी फ्रेश आम के अचार की रेसिपी। तो छोटे वाले आम जो आते हैं उसको प्रॉपर्ली मैंने वॉश करके पीसेस में काट लिया। उसके बाद ये जो अचार पाउडर है वो आपको कोई भी इंडियन स्टोर में मिल जाएगा। उसमें ना ही कोई सॉल्ट वगैरह ऐड करने की ज़रूरत होती है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी प्री मिक्स होता है। तो सबसे पहले सब कुछ मैं ये अचार पाउडर से आम को कवर कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रखा हुआ था। जब तक उसमें से स्मोक ना निकले तब तक आपको उसको गरम करना है। आप ऐसे गरम ऑयल उसमें ऐड करोगे ना तो आपका अचार लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा। और दैट्स इट। उसके बाद सब कुछ प्रॉपर्ली हमें मिक्स कर देना है। तो ये फ्रेश अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, स्पेशली अगर आपके पास ऐसे बेबी आम हो ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। सब काम खत्म करते करते हो गया था हमारा लंच टाइम। तो आज लंच में बन रहा है मैक्सिकन क्योंकि वो फटाफट बन जाता है। और ये मेरा अचार था। और कल शाम को मैंने आलू के परोठे बनाए थे तो वो भी मेरे पास पड़े थे। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वापस से मेरा किचन मैस हो गया है। तो ये काम तो नॉन स्टॉप हमारा चलता ही रहता है। पर मैक्सिकन राइस के साथ मैंने बीन्स भी बना दिए थे। और ये जो टोटी या बोट आते हैं ना वो मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि वो बरीटो के जैसे नहीं रहते कि बरीटो में आप स्टफ करते हो तो सब कुछ कभी निकल जाता है, पर इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप सब कुछ अंदर ऐड कर सकते हो। और ऑफ कोर्स क्यूट तो लगते ही है, छोटे से है, पर प्रेजेंटेबल वाइज भी बहुत ही अच्छे है। तो मैक्सिकन राइस है, बीन्स है, सालसा है, चीज है। तो बेसिकली जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हो। और सब कुछ मैंने ऐसे यहाँ पे टेबल पे रख दिया है ताकि बच्चों को जो भी उनको जैसे उनको खाना है वो खा सकता है। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज हाउ आई मैनेज माय डे। एंड बस ऐसे ही मैं मल्टीटास्किंग करती रहती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। I will see you guys soon in my next video. Till then, take care. Bye.